Hello students, we were doing Euclidean rings. Euclidean rings में ही theorem let R be an Euclidean ring and A and B be two non-zero elements of ring R. Then first part, if B is a unit in R, then D of AB is equal to D of A. Second part, if B is not a unit in R, then D of AB is always greater than D of A. So first part is अगर आपके पास B unit है R में, then D of AB is always equal to D of A. So सबसे पहले proof 1, by definition of Euclidean rings, we have always D of AB is greater than or equal to D of A. Let B be any unit in R. और अगर आपके पास B कोई यूनिट है रिंग R में, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा रिंग R में. बिकॉज यूनिट की डेफिनेशन अगर हम रिकॉल करें तो यूनिट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन रिंग. सो you can write A as AB into B inverse. So let us take valuation D on both sides. So you have D of A is equal to D of AB into B inverse. So by definition of Euclidean ring, we have always, आप अगर इसको A ले लो और इसको B ले लो तो D of A B into B inverse is always greater than or equal to D of A B. So what we get D of A is greater than or equal to D of AB. और हमारे पास पहले डेफिनेशन से क्या था, D of A is less than or equal to D of AB. So what will we get from 1 and 2? They both are equal to each other. So अगर आपके पास B यूनिट है, they both are equal. अब सेकेंड पार्ट में अगर B यूनिट नहीं है तो D of AB हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा D of A से. So second part का proof, if B is not a unit in R, then D of AB is greater than D of A. Let B is not unit. So अगर आपके पास B यूनिट नहीं है और AB अगर हम कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट लें R का, अगर AB is non-zero element of R, then for two non-zero elements A and AB, there exist Q and R such that you can always write A as Q times AB plus R by definition of Euclidean ring. और आपके पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम से either R is 0 और D of R is less than D of AB. Clear? So R, if R is 0, अगर आपके पास R 0 हो जाए तो you will get A is equal to Q times AB. So A into 1 minus QB is 0. Since you are working in integral domain, so A is not 0, so you have A 1 minus QB is 0. So Q into B is 1. So इसका क्या मतलब है कि B का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया. B का इन्वर्स क्या है, Q, such that Q into B is 1. So B is invertible, but we have B is non-invertible because B is not a unit in R. So R must not be 0. तो अगर आपके पास R 0 नहीं है तो we have D of R is less than D of AB. What is R? R is A minus Q times AB. So R is A times 1 minus QB. So D of R, taking valuation function both sides, D of R is equal to D of A 1 minus QB. But D of A is, अगर हम इसको A ले लें और इसको B ले लें तो D of AB, definition of Euclidean domain से D of AB is always greater than or equal to D of A. So D of A is less than or equal to D of A into D of QB. What is D of A Q 1 minus QB? That is D of R. So आपके पास क्या आ गया, D of A is less than or equal to D of R. और D of R आपके पास क्या है, less than D of AB from 1. So आपके पास रिलेशन क्या आ गया, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ दिस इज ऑल्सो लेस देन D of AB from 1. So D of AB और D of A में क्या रिलेशन आ गया, D of A is less than D of AB. So this is the proof of second part कि अगर आपके पास B यूनिट नहीं है तो आपके पास D of AB is always greater than D of A, और अगर आपके पास B यूनिट है तो they both are equal. Next theorem is
show that an element A in Euclidean ring R is a unit if and only if the valuation of D A is equal to D of 1. So हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? Let A be any element in Euclidean ring such that A is unit in a ring. So अगर A unit है ring में तो A inverse exist कर जाएगा ring में. So there exists A inverse belongs to R such that A into A inverse is equal to 1. और अगर हम दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट A ले लें और एक एलिमेंट A इनवर्स ले लें, दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ले लें, तो आपके पास दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स यूक्लिडियन रिंग में, यूक्लिडियन फर्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है डी ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ ए. So this is A, this is B. So you have D of A is always less than or equal to D of A into A inverse. So what is A into A inverse? It is 1. So you have D of A is less than or equal to D of 1 by definition. Next is अगर हम दो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट 1 A और 1 ले लें. So this is A, this is B. So again D of A is less than or equal to D of AB. So it is 1 into A is again A. So D of A 1 is less than or equal to D of A. So from 1 and 2, what is the possibility? Only possibility they both are equal. So D of 1 is equal to D of A. Converse part, let D of 1 is equal to D of A. But आपके पास अभी हमने रिजल्ट किया था कि अगर आपके पास A यूनिट है, लेट इफ पॉसिबल ए इज नॉट अ यूनिट. अभी हमने रिजल्ट किया था ए बी टू एलिमेंट्स है और अगर बी यूनिट नहीं है तो डी ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी ऑफ ए. सो आपके पास यहाँ पे हमने यही रिजल्ट यूज किया, तो आपके पास डी ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी ऑफ ए. सो ए को हमने ले लिया 1 और बी को ले लिया ए. सो 1 इंटू ए इज ग्रेटर देन डी ऑफ 1. सो यू हैव डी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1, D of 1. But what we have given that D of 1 is equal to D of A. So this is contradiction. So therefore A should be a unit in R. So this completes the converse part. Next question is, theorem is, let R be an Euclidean ring, then any two elements A and B in R have a greatest common divisor. तो आपके पास एक नया रिजल्ट आ रहा है कि अगर आपके पास आर यूक्लिडियन रिंग है तो कोई भी दो एलिमेंट का जीसीडी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. सो हाउ विल वी प्रूव? लेट अस कंसीडर एस इज ऑफ द टाइप आर ए प्लस एस बी. एस कोई सेट लिया जिसमें आपके पास किस तरह के एलिमेंट्स हैं? आर टाइम्स ए प्लस एस टाइम्स बी, वेयर आर एंड एस बिलोंग्स टू रिंग आर, और ए बी कोई भी एलिमेंट वो भी आर में से ही लिए हैं. सो नेक्स्ट वी विल शो दैट एस इज आइडियल ऑफ आर, और हम ये शो करेंगे कि एस एक आइडियल है. अब जीरो कैन बी रिटर्न एज जीरो इंटू ए प्लस जीरो इंटू बी. यहाँ पे ए और बी फिक्स हैं और आर एस जो है रिंग के एलिमेंट्स दे आर नॉट फिक्स. सो यू विल गेट जीरो बिलोंग्स टू एस. So S is non-empty. So there exists some elements belongs to S. So let us take X and Y belongs to S such that X is of the type R1A into S1B and Y is of the type R2A plus S2B, where R1, R2, S1, S2 belongs to the ring R. So let us now calculate. हमने अब प्रूव करना है ना S is ideal. तो हम क्या प्रूव करेंगे? अगर X, Y दो एलिमेंट हैं S के तो X माइनस वाई भी S में होगा, R इंटू एक्स एंड x इंटू आर बोथ बिलोंग्स टू s. अगर हम ये दो कंडीशंस प्रूव कर दें तो s इज एन आइडियल. सो x माइनस वाई कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा r1 माइनस r2 टाइम्स a प्लस s1 माइनस s2 टाइम्स b. तो अगर आप देखो r1 r2 जो है वो r के हैं, s1 s2 भी r का एलिमेंट है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट, ये आपके पास आ जाएगा R1 R2. अगर R2 R का एलिमेंट है तो माइनस R2 भी R का एलिमेंट होगा बिकॉज रिंग इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो माइनस R2 क्या है? उसका एडिटिव इनवर्स. तो अगर हम ऐड कर दें इन दोनों एलिमेंट्स को R1 और माइनस R2 को, तो वो भी कहाँ चला जाएगा? R में. S1 माइनस S2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R.
तो ये एक एलिमेंट है आर का, मल्टीप्लाई विद ए प्लस एलिमेंट ऑफ आर मल्टीप्लाई विद बी। इस तरह के एलिमेंट्स किसके हैं, सेट एस के, सो दिस बिलोंग्स टू एस। सो हमने प्रूव कर दिया एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस। So let us take now an element R belongs to capital R, arbitrary element. R into X is equal to R times R1A plus S1B. So you have R into R1 times A plus R into S1 times B. अब R into R1 किसके एलिमेंट है, रिंग R का, और R into S1 भी किसके एलिमेंट है, रिंग R का, because R is closed with respect to multiplication R also. So R into X किसके एलिमेंट आ गया, एस का, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स किस में है, एस में, मल्टीपल आर विद मल्टीप्लाई विद ए, एलिमेंट ऑफ आर मल्टीप्लाई विद बी। सो इसी तरह सिंस आर इज कॉम्यूटेटिव, सो यू हैव आर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू आर, दोनों कहाँ चले जाएंगे, एस में। सो वी हैव एस एज आइडियल ऑफ आर। और हमें ये भी पता है कि एवरी आइडियल ऑफ यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल. So S is a principal ideal of R. Therefore, S is generated by a single element. Let us say D. So D belongs to S. So D is of the form A और B फिक्स थे और M और N हमने कोई भी एलिमेंट्स ले लिए रिंग R से. तो D किस टाइप का एलिमेंट होगा, M टाइम्स A प्लस N टाइम्स B. अब A जो है दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी, क्योंकि 1 और 0 भी रिंग R का एलिमेंट है. 1 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि आपके पास यूक्लिडियन रिंग दिया हुआ है, ऑलवेज पोजेस्ड यूनिटी एलिमेंट, और दूसरा आपके पास ये 0 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रिंग. सो 1 और 0 हमेशा रिंग में होगा. सो देयरफॉर A बिलोंग्स टू S एंड B ऑल्सो बिलोंग्स टू S. सो आपके पास A भी S में चला गया, B भी S में चला गया, और you have S is generated by a single element that is D. So A जो एलिमेंट S में चला गया वो मल्टीपल होगा D का, because D S is generated by D. So A is multiple of D, that is D times lambda, and B is also multiple of D. और ये मल्टीपल्स कहाँ से लिए हैं, रिंग R में से. ठीक है. सो अब अगर आपके पास A इज इक्वल टू D टाइम्स लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू रिंग R, एंड B कैन बी रिटन एज D टाइम्स म्यू फॉर सम म्यू बिलोंग्स टू R. सो डिवीजन एल्गोरिथम से, डिवीजन से, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट से आपके पास क्या आ जाएगा, D डिवाइड करेगा A को और D डिवाइड करेगा B को, बाय डेफिनेशन ऑफ डिवीजन. हमने ये किया था डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट्स इन रिंग्स. सो सपोज हम कोई और डिवाइजर ले लेते हैं C विच डिवाइड्स A एंड B. तो अगर आपके पास C A को डिवाइड करता है और C B को डिवाइड करता है, इट मीन्स C डिवाइड्स मल्टीपल्स ऑफ A एंड B. तो अगर C मल्टीपल्स ऑफ A एंड B को डिवाइड करता है, तो ये रिजल्ट, अगर कोई एलिमेंट R A को डिवाइड करे, कोई एलिमेंट B को डिवाइड करे, तो R डिवाइड करेगा उन दोनों के प्लस माइनस, A प्लस माइनस B को भी. सो अगर C डिवाइड कर रहा है MA को और NB को, तो C डिवाइड्स MA प्लस NB. दिस इज एलिमेंट D. सो C डिवाइड्स D. D A को डिवाइड कर रहा था, D B को डिवाइड कर रहा था, और कोई और डिवाइजर लिया हमने C A और B का, तो C ने D को भी डिवाइड कर दिया. इट मीन्स D is GCD of A and B. So this completes that GCD exists for elements A and B of Euclidean ring R. Next theorem, let A, B, C be an arbitrary elements of a Euclidean ring R if GCD of A and B is 1 and A divides BC, then A divides C. So let us take GCD of AB as 1. So there exists some Mn belongs to ring R such that we can always write M times A plus N times B is equal to 1. So multiply this with C, both side you have MAC plus NBC is equal to 1 into C is C. Since A divides BC, BC को divide करता है A, so you can always write BC as A times T for some T belongs to R. Divisibility concept. So what will you get? You will get M times AC
प्लस एम टाइम्स, अब बी सी की जगह आपने क्या लिख दिया, ए टी, ए टाइम्स टी इज इक्वल टू सी. नाउ ए इज कॉमन, सो इट इज एम सी प्लस एन टी, ए इज इक्वल टू सी. अब ये किसका एलिमेंट है, रिंग आर का. एम सी भी आर में से है, एम भी आर का एलिमेंट है, सी भी, एन और टी भी. तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन कहाँ चला जाएगा, रिंग आर में. सो अगर आपके पास सी इज इक्वल टू ए टाइम्स सम एलिमेंट ऑफ रिंग आर, तो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट से दिस इम्प्लाइज ए डिवाइड्स सी. सो यही आपने प्रूव करना था. सो ए डिवाइड्स सी. नेक्स्ट थ्योरम इज लेट आर बी अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, देन एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स हैव अ एलसीएम. तो अब आपके पास थ्योरम क्या है, अगर आपके पास आर कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो किन्हीं दो एलिमेंट्स का एलसीएम जरूर मिल जाएगा. सो प्रूफ ऑफ द थ्योरम, लेट एस बी एन आइडियल जनरेटेड बाय ए एंड टी बी एन आइडियल जनरेटेड बाय बी, बिकॉज इट इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. तो हर एक आइडियल जो होगा दैट इज जनरेटेड बाय ओनली अ सिंगल एलिमेंट. सो हमने एक थ्योरम की थी कि अगर आपके पास दो आइडियल्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक आइडियल ही होगा. सो एस इंटरसेक्शन टी इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ रिंग आर. सो लेट अस से एस इज क्योंकि अब आइडियल है एस इंटरसेक्शन टी, और हर आइडियल बिकॉज इट इज गिवन टू बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल. सो एस इंटरसेक्शन टी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल आइडियल. इट इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, लेट अस से एल. अब S intersection T is contained in both set, that is S as well as in T. So आपके पास ये जो एलिमेंट है L into 1, मल्टीपल्स ऑफ L होंगे ना. सो L into 1 is always contained in 1, किसका है, रिंग का एलिमेंट, always contained in L. सो L जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होंगे आइडियल्स, उनमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, L into R, सम एलिमेंट्स ऑफ R. सो इसी टाइप का होगा. सो L into 1 is always belongs to L, एलिमेंट्स जनरेटेड विद L. सो L कहाँ चला जाएगा, अब आपके पास L belongs to एलिमेंट्स L set of elements generated by L. So this implies L is always contained in, L belongs to elements generated by A. अब क्यों ऐसा हमने लिखा, बिकॉज S इंटरसेक्शन T इज कंटेन्ड इन S, और S जो है वो किससे जनरेट हुआ है, A से. सो L जो एलिमेंट यहाँ पे था, L में एलिमेंट जनरेटेड विद L, सो वो कहाँ पे चला गया, A में. सो L किस टाइप का हो जाएगा, L इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ A. सो L कैन बी रिटन एज A टाइम्स सम एलिमेंट ऑफ R, दैट इज X, X बिलोंग्स टू R. इसी तरह L जो है वो L में कंटेन्ड है, सेट जनरेटेड विद L, और L जो है अब S इंटरसेक्शन T जो है वो किस में कंटेन था, कैपिटल T में, और कैपिटल T किससे जनरेट हो रहा है, B से. सो L जो एलिमेंट है वो किस में चला गया, B में, एलिमेंट्स जनरेटेड विद B. सो L इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ B. सो L इज इक्वल टू B टाइम्स Y फॉर सम एलिमेंट Y बिलोंग्स टू R. अब अगर हम डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ से आपके पास A डिवाइड करेगा L को और B डिवाइड करेगा L को फॉर सम एलिमेंट्स X एंड Y बिलोंग्स टू रिंग R. सो A डिवाइड्स L, B डिवाइड्स L. क्लियर. अब लेट अस टेक A डिवाइड C एंड B डिवाइड C. तो अगर A डिवाइड कर रहा है C को, तो देन C कैन बी रिटन एज A टाइम्स U, where U belongs to ring R, and C can also be written as B times V, where V belongs to ring R. So C is contained in the set generated by elements A, multiples of A, or C is always belongs to the set which is generated by elements B, multiples of B. So C कहाँ पे चला गया, S intersection T में. ठीक है, क्योंकि दोनों में है C, तो वो सेट जो दोनों में है वो एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, उनके इंटरसेक्शन में चला जाएगा, और इंटरसेक्शन किससे जनरेट हुआ है, L से. सो C बिलोंग्स टू एलिमेंट जनरेटेड विद L. सो अगर C बिलोंग्स टू एलिमेंट जनरेटेड विद L, तो C किस टाइप का होगा, मल्टीपल ऑफ L. सो C इज इक्वल टू लैम्डा L, और इट
बाय कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, लैम्डा किसका एलिमेंट है, रिंग आर का, तो बाय कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी दिस इम्प्लाइज एल डिवाइड सी। तो आपके पास ए एल को डिवाइड कर रहा था, बी एल को डिवाइड कर रहा था, कोई और हमने एलिमेंट लिया सी सच दैट ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी एंड L divides that also, that C also. So therefore L, by definition L is LCM of A and B. So किसी भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए आपके पास किन्हीं दो नॉन जीरो एलिमेंट का LCM ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. So this completes the lecture. So thank you for watching the lecture. Next video में we will continue with some more concepts based on Euclidean rings.